Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture 10 of modern history. Now what we'll be doing here is Lord Cornwallis and John Shore. Why just these two? Because Cornwallis is quite long and I must tell you the basics of the history very well rather than moving very fast. But after this lecture we will be moving very fast and there will be very heavy content in coming lectures. So be ready. And just because before we move ahead, I'll tell you what all we have already done. We have done with Mughals, Marathas, Bengal. We have done all those Awadh, right? And we are also done with the Battle of Plassey, Vandi Wash, Buxar. We are done with the Regulation Act of 1773. We are done with Warren Hastings and all those conditions. We've done so much, so many facts. I hope you remember them all, right? And I hope you remember so many of those wars. I'll be recalling those wars, especially these Anglo Maratha wars and Anglo Mysore war. These two are very important. That is all about them. And before I proceed with the today's lecture, I must remind you that you must go through this uh, video of earlier lectures if you have not seen them, because to better appreciate and understand this lecture you have to go through these videos. अगर इस lecture को अच्छे से समझना चाहते हैं तो please जाइए और बाकी lecture अच्छे से बाकी videos को भी देख लीजिए. So we begin with the first lecture, the 10th lecture. I mean, so in this lecture, we last time what we did was Warren Hastings. Now Warren Hastings के बाद जो बंदा आया, he is basically Cornwallis, right? But before that, a minor character also comes. I'm not doing minor characters, so you just have to listen to me once and then forget about it. एंड हिज नेम इज जॉन मैकफर्सन. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग के बाद आया था ये, ठीक है जी. नो नो, वी शुड रादर देन राइटिंग हियर, लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे सो दैट यू डोंट कंफ्यूज इट विद एनीथिंग. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई. वॉरेन हेस्टिंग के बाद जॉन मैकफर्सन आया. तो मैक, हम इसे मैक बुलाएंगे फॉर आवर पर्पस. ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स. व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम्स? ये समझने के लिए पिछला लेक्चर देखें. He feared Scindia, who was then well recognized face of Marathas. Scindia asked him to pay 4 crore rupees as arrears to the tribute promised by British in 1765, to which Mac refused. Right? Actually मैं ये सिंधिया से डरता था. सिंधिया ने ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था सिंधिया को कि अगर आपको 1765 में कि हम आपको 26 लाख रुपया देंगे एक साल का. अब ये कह रहा है कि भैया इतने साल हो गए, 1984-85 आने वाला है, आपने हमें कोई पैसे नहीं दिए, राइट? सॉरी 1785 ना. तो ये डरता भी था. 1786 there was a war between Marathas and Tipu Sultan. This war is not important, just remember it once. Before the war could conclude, Mac was superseded by Cornwallis. Just this small fact about him. Occasionally, very rarely actually, such a question will be asked, but still we should know little bit about them, not much. And whatever I'm telling you about this minor character is more than enough. You need not know more. So we start with Cornwallis. This number 2 represents that he is the second governor general, right? Second, हर जगह इसके साथ 2 ही लिखा आपको मिलेगा. तो ये हैं जनाब कॉर्नवालिस. 1785 से 1793 तक रहेंगे. कॉर्नवालिस की बात करें, ये आप देख रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की लड़ाई की. लेट्स लुक एट द इमेज फर्स्ट. इफ यू सी द इमेज, व्हाट इज दिस थिंग? व्हाट इज दिस? ये तो यूएस का फ्लैग आ गया. ये कहाँ से आ गया? तो विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि कॉर्नवालिस यूएस के अंदर भी लड़ रहा था. ये कॉर्नवालिस, राइट? तो क्या कैसे लड़ रहे थे, ये क्या हो रहा था यहाँ पे? अब बैटल ऑफ यॉर्क टाउन एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था. यॉर्क टाउन, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाऊंगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा. और ऐसी वर्ल्ड हिस्ट्री होगी कि दुनिया में ना आज तक हमने कोई किसी ने पढ़ाई नहीं होगी किसी को, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी कितनी अच्छे से तैयार है. तो खैर, एट टाइम वो मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छी होगी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज, दैट इज माई प्रॉमिस. बैटल ऑफ यॉर्क टाउन एट टाइम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, ठीक है जी. नाउ कॉर्नवालिस हैड लॉस्ट इन दैट वॉर ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अमेरिका एंड फ्रेंच, एंड इट वाज आफ्टर दैट टाइम that British that America after this time that British paved the way for complete independence of America. सोल्जर था ये, एक डिप्लोमेट भी था. इसका ये मर गया गाजीपुर में, इंडिया में. इसका मेमोरियल भी है यूपी के अंदर, आप देख सकते हैं अगर किसी ने जाना हो. He helped in creation of superstructure over work of Warren Hastings by carrying out important judicial and revenue reforms. ये जनाब ने जो काम किया वो कुछ उसमें कुछ खास नया नहीं था, हाँ, लेकिन एक चीज़ थी.
जो इनसे पहले वॉरेन हेस्टिंग जी कर गए थे, उनके कामों को इन्होंने और बड़ा कर दिया। ठीक है जी, बाय कैरिंग आउट। और कैसे किया बड़ा? दिस वॉज डन बाय टू वेज। वन वॉज जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड सेकेंड वॉज revenue reforms. These are very true, and we'll be reading in detail about these reforms. So now, when he comes to India, if you remember, I told you about that Warren Hastings also, that he had his own aims, right? Now, what were the aims of Cornwallis when he comes to India? Number one, there was chaos in the Bengal government. कुछ का कुछ भी हो रहा था वहाँ पे। कोई किसी को पैसे दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, कुछ बागी हो रहे हैं, some people are turning rebellious, ठीक है ना? और so रेवेन्यू कलेक्शन इतनी नहीं हो रही, अगर हो रही थी तो बड़ी सप्रेसिव थी, तो क्या हो रहा था वो इसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसका दूसरा काम था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्मूथ करना। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्मूथ कैसे करेगा? केओस को खत्म करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्मूथ करना पड़ेगा। और वो केओस को खत्म करना है, इसको खत्म करना है, तो आपको क्या चाहिए? स्मूथनेस चाहिए होगी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। सॉरी, ये स्लाइड मेरे से मूव हो गई गलती से। तो अगर आपको केओस को ख़त्म करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस स्मूथ करना है। तो कैसे करोगी स्मूथनेस लाने के लिए? तीन चीज़ें लाओगे, राइट? एक, दिस इज अ क्रीम विथ 3 इंग्रेडिएंट्स फॉर स्मूथनेस ऑफ स्किन। ठीक है जी, इट्स अ क्रीम। कैसी है ये स्मूथ कर देगी। कैसे करेगी? जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स। और इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला के हम कहेंगे Cornwallis Code. Cornwallis Code. Right? To make the administrative process smoother, Cornwallis brought 3 changes. These were judicial reform, administrative reform, revenue reforms. Right? जार, घड़ा है एक, तो जार है, राइट? तो कॉर्नवालिस कोड जो है इसको कहा गया, और ये 1793 में इंप्लीमेंट हो गया। वाई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, ये पेपर में ना आपके एज इट इज उठ के आ जाएगा। अब इंडियंस जो थे वो यूरोपनाइज्ड, और जो इंडिया, मतलब कि इंडिया की मार्जिनलाइजेशन होगी, हमें भी उन्होंने अंग्रेजों की तरह कर दिया। हम आज भी अंग्रेजों की कितनी सारी चीज़ें कॉपी करते हैं ना। आपने कभी देखा है वो धोती के साथ पहले कोट पहनना शुरू किया हमने, हैं ना? दैट इज वो लाइक 1900s में। और उसके बाद हमने क्या किया? अब हम पूरा ही सूट पहनने लग गए, और अब तो हम उनसे भी आगे निकलने लग गए हैं ना। इंडिया के बारे में वेस्टर्न एक बड़ी फेमस बात है, मेरे कुछ रिलेटिव यूएस में रहते, जब भी आते हैं कहते हैं इंडिया 2 ही चीज़ों में आगे है। मैं कहा जी 2 ही चीज़ें कह रहे, एक टाइम एक फैशन है। लेकिन नाउ आई टेल देम हम बहुत आगे निकल गए हैं बहुत सारी चीज़ों में। उन्होंने आईएएस की तैयारी नहीं ना की। खैर, तो कॉर्नवालिस के अंदर क्या है रूल? अब कॉर्नवालिस क्या लेकर आया? एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कंपनी सर्वेंट्स के लिए रूल लेकर आया, जो कंपनी के नौकर थे, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर। और वो क्या थे? वो थे ओनली क्वालिफाइड पीपल वुड एंटर इनटू द सर्विसेज ऑफ द कंपनी। ये नहीं भी किसी भी नथु गहरे को उठाकर डाल दो, ठीक है ना? ये सी देयर वर प्रॉपर रूल्स फॉर इट। ओनली क्वालिफाइड पीपल। नंबर 2, सिफारिश नहीं चलेगी जी। ये सिफारशी काम इंग्लैंड में भी होते थे हैं। नो रिकमेंडेशन फ्रॉम इंग्लैंड वुड बी गिवन वेटेज फॉर अपॉइंटमेंट्स इन द कंपनी सर्विस। नो रिकमेंडेशन, दिस इज गुड स्टेप। Now, private trade of all the company servants was abolished. अब प्राइवेट ट्रेड करते थे ना, क्यों? Why was this abolished? सारा ध्यान इसके ऊपर हो रखा है, ठीक है ना? ध्यान से सुन रहे हो ना? सारा ध्यान इन लोगों का प्राइवेट ट्रेड पर हो गया। जब ध्यान कहीं और होता है तो पढ़ाई भी नहीं होती, तो ध्यान कहीं और था, प्राइवेट ट्रेड पर था, तो कंपनी को कैसे फायदा होगा? बंद कर दो। अगली बात, कंपनी सर्वेंट्स फॉर नाउ टू साइन अ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक कागज पे सिग्नेचर करके देने थे, लिख कर देने थे। उनको क्या कहना था? उसके अंदर लिखा था which included that they won't accept any gifts from Indians and will not indulge in private trade. ये आपको पहले भी बता सका हूँ। और इंडियन से वो कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो ये बात पहले भी आ चुकी थी, ठीक है? इफ़ यू रिमेंबर, ये बात हमने लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर भी पढ़ी थी। एंड इफ़ यू रिमेंबर, उस टाइम पे बंगाल का जो नवाब था वो लॉर्ड क्लाइव के लिए पैसे छोड़कर गया था, और वो क्योंकि इसी उसके रूल की वजह से वो पैसे घर पर नहीं लेके जा पाया था, तो ही मेड क्लाइव फंड। वी कवर्ड दिस इन द अर्लियर लेक्चर। नाउ, top posts were only for Europeans and Indians. Lower post such as peons, ठीक है ना, वो इंडियंस के लिए थी, और जो टॉप पोस्ट थी वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी। ये आपसे अलग है, ठीक है? नाउ, रेवेन्यू कलेक्टर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ जुडिशियल पावर्स। रेवेन्यू कलेक्टर्स को जुडिशियल पावर्स खत्म कर दी। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या है इस टाइम पे, कॉर्नवालिस के टाइम पे? अब देखो, आई टोल्ड यू दैट टू मेक द रफ पाथ ऑफ administration by Britishers, 3 changes were brought to smoothen by applying a cream that contains 3 ingredients. One is administrative reform, judicial reform,
right? If you remember, I'll show you. This is it. Judicial reform, administrative reform और revenue reform. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का एक पार्ट होता है कंपनी के अंदर कुछ रूल्स बनाना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स. जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशरी जो होती है हमेशा दो किस्म की होती है. कैसे दो किस्म की होती है जी? जुडिशरी, राइट. वन इज सिविल साइड, वन इज क्रिमिनल साइड. सिविल साइड इन हिंदी इज कॉल्ड दीवानी and criminal side in Hindi is called फौजदारी, राइट. अभी इस तरफ फोकस कीजिए, टेक्स्ट की तरफ मत देखिए. तो दिस इज इट. ना सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट होती है, राइट. विल गो इनटू लिटिल मोर डिटेल व्हेन वी स्टडी पॉलिटी आल्सो. नाउ देयर वाज इन Cornwallis set a new hierarchy in judiciary, right? Now we are talking about Diwani courts here. We'll start from below, right? This is the path we'll be following. Let me just draw this. This will be way we will be going. Now this is the lowest court over Munsif. अभी भी इंडिया की कुछ स्टेट्स में, few states in India still have Munsif की court. Now these are the lowest courts, normally having English. Indians were here only, right? Normally English होते थे मुंसिफ की कोर्ट में. जो जजेस थे कई बार इंडियंस भी होते थे. एंड सिर्फ ओनली दोस्त के सिर्फ 50 रुपए से कम जहाँ होंगे उन्हीं को आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो. इसके ऊपर जो कोर्ट होती थी वो होती थी कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, राइट. रजिस्ट्रार एम और एक है मुंसिफ, फिर आया रजिस्ट्रार. फिर उसके बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाते थे, ठीक है जी. रिप्लेस्ड इट बाय यूजिंग कॉर्नवालिस कोड, रिप्लेस्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज अ सिविल सर्वेंट. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठने लग गया, ठीक है जी. तो क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता था अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठने लग गया. यहाँ पर ये बोल्ड जो होना चाहिए था वो ये था, रिप्लेस्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि एक सिविल सर्वेंट होता था. अभी फिर इसके बाद जो आती हैं वो आती हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स. DCMP, ये याद रखिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स आती थी, ठीक है. प्रोविंशियल कोर्ट्स, इनको प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील भी कहते थे. ये कहाँ कहाँ बैठती थी? DCMP, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना. एंड लेकिन इन कोर्ट्स को बाद में जाके बेंटिक एबॉलिश कर देगा. कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी कोर्ट को क्यों एबॉलिश किया जाएगा, हैं? क्यों? अगर कोर्ट है तो लिटिगेशन बढ़ गई, एक कारण ये हो सकता है, ठीक है, नंबर 1. और गवर्नमेंट को लॉसेज हो रहे थे, ये तो ये हो गया. दूसरी बात. तीसरी बात, क्यों कोई बेंटिक्स को एबॉलिश करेगा? क्योंकि लोग अपनी वेंजेंस को सामने लेकर आ रहे थे, अपने को जो उनके साथ बुरा हो रहा था उसको सामने प्रकट कर रहे थे. They were telling to the Britishers through these courts. And finally, Britishers were, after all, they were here for profit, not to serve justice to India, right? So, but Britishers realized this thing very late, and that was in 1831. Now, Sadar Diwani, above provincial court is the Sadar Diwani Adalat, right? I'll just draw this again for you. This is the hierarchy. This is the lowest court. Munsif, Registrar, District Judge, Provincial Courts, Sadar Diwani Adalat, Sadar Diwani, Sadar Thana. सदर थाना सबसे बड़ा थाना जो होता है ना शहर का, तो सदर थाना. वैसी सदर दीवानी हेडक्वार्टर कलकत्ता में इसके होंगे. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. जजेस वर सपोर्टेड बाय हेड काजीज, 2 मुफ्तीज एंड 2 पंडित्स, राइट. एंड किंग्स इन काउंसिल, ओनली यूरोपियन, ओनली दोज केसेस इन्वॉल्व विद मोर देन 5,000 रुपीज, जहां पर जिसके अंदर इन्वॉल्व होते थे उसके अंदर किंग के पास जाते थे. इंग्लैंड के अंदर ही होती थी ये, इंडिया में नहीं होती थी. इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट फॉर सदर दीवानी, राइट. किंग उसके पास जाते थे, किंग सुनता था, लेकिन मोर मनी ग्रेटर देन 5,000 रुपीज. 1785 में 5,000 रुपीज है, आज तो इतना हो गया होगा 500 करोड़ पर, शायद 5,000 करोड़. हाँ, तो उतना बड़ा अमाउंट के लिए, उसके लिए तो आप कहीं भी चले जाओगे आज भी. सो दैट्स इट. प्लीज पॉज हेयर फॉर अ वाइल. द वीडियो को पॉज कीजिए और इसका रट्टा मार लीजिए कि ये कौन सी हायरार्की है कोर्ट्स की. कई बार ये पेपर में हायरार्की पूछी गई है. पहले है मुंसिफ, फिर आती है कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर आती हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स, और फिर सदर दीवानी, एंड फिर फाइनली किंग, राइट. तो मुंसिफ, रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट जज, प्रोविंशियल कोर्ट, सदर दीवानी, किंग्स एंड काउंसिल. प्रीलिम के पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू आंसर दिस. नेक्स्ट, we are done with civil jurisdiction, and now we'll talk about criminal फौजदारी केस. now petty cases causes Indian judges, otherwise normally इसमें ब्रिटिश होते थे. छुटपुट, हाँ, थप्पड़ मार जाएगा. इतने में भी केस उस टाइम पर हो रहे होंगे, हैं, क्योंकि अभी इंडियन पीनल कोड तो अभी आया ही नहीं. वो तो 1860 में जाके आएगा, मैकॉले लेकर आएगा बाद में जाके. तो अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है, उसके वो अपने लॉ चल रहे हैं. कैसे?
सबसे नीचे होती थी दरोगा अदालत, दरोगा की अदालत, दरोगा की अदालत। जज एक दरोगा होता था, इंडियन होता था आमतौर पे। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एट तालुका एंड तहसील लेवल ये होता था, राइट। दैट्स इज नंबर वन। नंबर टू इज डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स। जज एक सेशन जज होता था जो कि नॉर्मली ब्रिटिश ही होता था, राइट। और फिर सर्किट कोर्ट्स की बात करें, सेम वही ढाका, ढाका, अरे क्या था ये, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना, राइट। दिस वाज इट, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना। दिस वाज इन सर्किट कोर्ट। सर्किट कोर्ट होती थी। फिर जो सर्किट कोर्ट्स होती थी, इनके हेड जो होते थे ये ब्रिटिशर्स ही होते थे। दिस इज जस्ट वन ओनली, एंड फोर इन बंगाल, एबॉलिश बाय बेंटिक इन 1831, राइट। इनको भी सर्किट कोर्ट सारी, चाहे वो सिविल थी, चाहे मैंने आपको पिछले पेज पर दिखाया था जो ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील है, इन दोनों को सर्किट कोर्ट्स होती थी। These circuit courts would not sit every day, right? They would travel. Sometimes they would sit, same judges, they would travel. Some Dhaka or Calcutta, Murshidabad or Patna, right? Then at the top was Sadar Diwani Adalat, and location was Murshidabad. That would sit once a week only, and so it was supervised by Governor General and Consul. Now, can you think of a reason why there is no king and consul for these criminal courts? Now, why am I talking about just Daroga and district and circuit and Sadar Diwani, huh? Because king has no interest, only his interest is money. Let people die. किसी को करने दो, किसी का मर्डर कर रहा है अगर, मतलब ही नहीं है ब्रिटिशर्स को। So that's how it is. Now, अब इम्पैक्ट क्या हुआ जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने से? एक तो लिटिगेशन बढ़ गई, राइट। फिर कोर्ट्स वर चोक्ड, आजकल भी हो रखा है, इंडिया में कोर्ट्स हैं वो इतनी चोक हो रखी हैं। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, राइट। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट दिस इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जब हम रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर लेटर ऑन जमींदारी गेट्स कोर्सिव पावर्स इन 1795 एंड 1799 विद व्हिच लिटिगेशन गॉट रिड्यूस्ड अ बिट। जमींदार्स को जो कुछ पावर्स दे दी गई, जुडिशियल पावर, जिसकी वजह से कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो गया, ठीक है जी। Okay, so the next is the Cornwallis as the father of the civil services in India. This was from see why he's known as the father of civil services in India. He did not start those what do you call the Indian civil service, right? ICS was not started by him, or not even IAS, right? ICS later converts into IAS, but ICS was not started by him. But then why he's known as the father of civil service in India? This can be a question in paper actually. See. Cornwallis is known as the father of civil services because he started the Indian civil services. False. क्यों गलत है? He is known as because he brought such changes in internal administration and judiciary which were fundamental to civil administration in India. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऐसे कुछ बदलाव लेकर आया था, ये जो बेसिक बनाते थे, उनकी वजह से इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा गया। He is also known as the father of the modern police administration. पुलिस was under जमींदार। सोच के देखो, पुलिस जमींदारों के नीचे होती थी। जमींदार कौन होते थे? बाद विल टॉक अबाउट इट, अभी जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे। अभी ये जो जमींदार जिसके पास जमीन है, बस इतना समझ लीजिए। बिफोर दिस, अब एंड नाउ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस was created by a regulation. Indians would get highest post of दरोगा। दरोगा आज का सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा है। पुलिस was यूरोपनाइज। यूरोपनाइज का मतलब क्या है? उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म, उनकी ट्रेनिंग और वो सारा कुछ जो यूरोपियन वे में करते थे, ठीक है। हाँ, हमारी जो वर्दी है पुलिस की वो भी कॉलोनियल लेगेसी है, और हम सोच भी रहे थे, हैव यू एवर वंडर्ड कि इंडियन पुलिस सर्विस की यूनिफॉर्म चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ममता बनर्जी वंस थॉट अबाउट इट कि कैलकाटा के अंदर पुलिस की चेंज होनी चाहिए। हाँ, खैर, police was not paid salary and unlimited power to arrest suspected persons. Thanas came into existence to maintain law and order. थाने का सिस्टम शुरू हुआ, थाना. This is important. Zamindar still influence these thanas, right? But this is not Indian civil service, please remember. He's my father of civil service in India for this purpose. Now, abolition of slavery. Lord Cornwallis said that. What was he saying? Anyone who is found associated with slavery would be prosecuted in the Supreme Court. Took up the menace of child slavery. इससे पहले कि आप खुश हो जाएं कि बड़े अच्छे थे जी ब्रिटिश, उन्होंने हमारे देश में स्लेवरी खत्म करने की कोशिश की, जानिए असली कारण क्या था? Real reason was that children were collected by the Indians and sold to French. ठीक है, ये हो रहा था यहाँ पर इंडिया में. This was the reason. अब कॉर्नवालिस के बारे में और बात करें तो इसने कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे, सारे जाने लड़ाइयाँ लड़ेंगे, ठीक है। कौन किसी को कैसी लड़ाई लड़ेंगे, विल टॉक अबाउट दैट। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वाज देयर, राइट। नाउ
in 1792 to 1792. Second Anglo-Mysore War ended with Treaty of Mangalore. I told you that, which included clause on transfer of prisoners, and Tipu did not honor this by keeping British prisoners with him. Right? This ended with Treaty of Srirangapatnam. Now, see what is Srirangapatnam. Now, see what was in that treaty after Second Anglo-Mysore War, that Tipu's half territories, right, were Srirangapatnam was not with Second Anglo-Mysore War. This was Third Anglo-Mysore War. Tipu's half territories were snatched and divided in Marathas, Nizam, and British. Right. Tipu was to pay the war indemnity. Raja of Kurg, ये आज बहुत स्पेलिंग एरर्स हो गए हैं, स्पेल चेक रह गया शायद. Raja of Kurg got independence from Tipu. Right. Two sons of Tipu were delivered as hostages. Right. टीपू के दो बच्चों को होस्टेज बना के भेज दिया. कुर्ग के राजा को टीपू से आज़ादी मिल गई. टीपू को वॉर के लिए जो खर्चे हुए अंग्रेजों की उनकी भरपाई करनी है, और आधी टीपू की टेरिटरी लेके उसको कुछ मराठा को, कुछ निज़ाम को, कुछ ब्रिटिश को दे दी. देख तो ये हुआ मैसूर मराठा वॉर, जिसके बारे में मैं आपको मेंशन पहले ही शुरुआत में भी कर चुका हूँ. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. एंड ये आई थी मैकफर्सन के टाइम पे. मराठास ट्राई टू इंक्लूड कॉर्नवालिस इन दिस, जब ये आ गया उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की, बट रिमेन न्यूट्रल, एंड फाइनली दे वर एग्जॉस्टेड एंड दे साइन द ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़. मैं सिर्फ इसके लिए आपको एक मेंशन इसका कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ. एंड इस टाइम पे कॉर्नवालिस के टाइम पे कोई खास इसने दोस्त नहीं बनाए, जैसे कि कभी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती थी फ्रेंडशिप की, तो इसने कोई दोस्त नहीं बनाए. अब बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की. सी प्रेडिसेसर टू दिस सिस्टम वाज इजरदारी सिस्टम, इजारेदारी सिस्टम, और इजरदारी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. What is इजारेदारी सिस्टम? It was introduced by Cornwallis in 1973. Right of collecting revenue was given to the highest bidder. बोली लगती थी, जो कहता था मैं इतना ज्यादा रेंट इकट्ठा करके दे दूंगा, और तो उसको वो इजारेदार बना देते थे. उसके पास राइट होता था रेंट कलेक्ट करने का. सो रेंट फिक्स नहीं था. ब्रिटिश गवर्नमेंट अब खुश नहीं है जो इंग्लैंड में बैठी है. दे आर सेइंग one day we are earning £1 and other day we are earning £10. This is not okay. No. Change the system. So while Ijaredari system was introduced only in Bengal, right? They started with Bengal. The permanent settlement system was introduced in, say, BBO, Bengal and Bihar. ये डिफरेंस आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और इजारेदारी सिस्टम के अंदर. अब फिर आगे क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की डिटेल्स पढ़ते हैं. इसमें होता क्या है. वॉरेन हेस्टिंग जो था 5 ईयर सेटलमेंट सिस्टम लेकर आया, ठीक है जी, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इस टाइम पे वो कॉर्नवालिस के टाइम पर ही प्रॉपर जो होती. वॉरेन हेस्टिंग वो तो 5 ईयर सेटलमेंट लाया था. जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो कॉर्नवालिस लाया. तो रेवेन्यू सिस्टम की जो जो फिक्स होती है यूजली एट हाई रेट, क्योंकि किसी से कंसल्टेशन तो करते नहीं थे कितना करें. 1765 से लेकर 1793 तक अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू था वो की डिमांड थी ब्रिटिशर्स की, वो इंडिया में डबल हो चुकी थी. सबसे पहले बंगाल और बिहार में आए, देन टू नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी. डोंट टेक दिस सेंटेंस लाइटली, दिस हैज बीन आस्क्ड इन पेपर वंस ऑलरेडी एंड आई फील कि दिस कैन बी आस्क्ड अगेन प्रोबब्ली दिस टाइम. राइट, कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था सबसे पहले कहाँ आया और उसके बाद कहाँ कहाँ आ गया. This is Madras, this is district of Varanasi, this statement is right from NCERT. ये वाली statement है जो I remember. Okay, in central India and Awadh there was temporary zamindar system. Zamindar were made owners of the land, but they had to pay revenue as was revised periodically. जमींदार ही मालिक बन गया जमीन का. जमींदार कैसे मालिक बन गया जमीन का? जो किसान खेती कर रहा है, is not he the owner of land? The peasant, what about him? Is not he the owner of land? Why was zamindar? British said, you give us revenue, you collect the revenue, and you are the owner of the land, and the person who's a peasant, he is turned into a tenant. And revenue collector called zamindar was given the, see, John Shore, head of the committee to understand the system in India, along with James Grant. These two people played important role in setting up this system, and John Shore plays very important role in execution of this system later when he becomes the Governor General in 1793, when Cornwallis retires and John Shore remains up to 1798. Okay, which we'll be doing in the next in this lecture only. Now, revenue collector called zamindar was given ownership, and areas given to them was their जमींदारी. जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था उसे जमींदार कहते हैं, और जो पैसा इकट्ठा करके जो जिस जगह से पैसा इकट्ठा करता था उसे जमींदारी कहते हैं. नाउ जमींदारी या फिर now collective ownership was the trend. Revenue collector had ownership with king as the ultimate owner. लेकिन doesn't mean that
वो एक्चुअली में जमींदार ओनर बन गया. ओनरशिप ब्रिटिशर्स ने अपने पास ही एक किस्म की रख ली. इट्स लाइक दिस कि मैं आपके पास, यू ओन अ लैंड and I am the government of India. What I do, I come to you and say, okay, from today, even from your neighbor's land, what you can do, you can collect, your neighbor will have to pay certain revenue to you, and you will be giving some part of it to me, and you can keep a part of it yourself. 89% part you will have give to me, and 11% you can go and keep with yourself, right? So that was it, right? It's not 11%. It comes down to 1 by 11. So that's like 9.99%, right? Somewhere like 90%. Let's call it 10%, right? So that was with them, and partially it was with the Britishers. तो आपने अपने नेबर से कलेक्ट करने लगे, और नेबर ना अपने लैंड का ओनर रहा, और ना ही जो आपका नेबर आप उसके ओनर रहे उस लैंड के. ब्रिटिशर्स सेड कि ये लैंड जो है, ये सारी लैंड हमारी है, इसके अंदर आपके ओनर का कुछ भी नहीं लेना देना होगा. और दूसरी बात, जो भी ये रेंट का कलेक्शन होगा, इसका आप एक ही पार्ट अपने पास रख पाएंगे, बाकी ज़्यादातर पार्ट तो आपको हमें ही देना पड़ेगा. ठीक है जी. और फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे zamindar would get 1 by 11% for serving as agent of the government, but the rent they had to pay to government was fixed, and the rent increased owing to better agriculture or his capacity or extract more on any other reason. Then he would keep that extra with himself, but he had to pay rent to government rigidly, even if there was crop failure, otherwise his land was sold. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है ब्रिटिशर्स वो क्या कहते थे कि ओके फाइन, वी गिव यू द अथॉरिटी टू चार्ज मनी एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट, बट देयर इज वन कंडीशन, एंड द कंडीशन इज दैट यू विल हैव टू गिव अस रेंट कम व्हाट मे, राइट. So Britishers were taking around 10 by 11, right, and 1 by 11 was with zamindar only. That is not 11%, that's 99, that's 9%. I'm sorry, this is not 11%. So अब क्या होता है कि आपकी क्रॉप सुधार ली. अब क्या होगा, जब क्रॉप सुधर गई, ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, तो जमींदार कैन कलेक्ट एंड द रेंट एंड कीप इट विद हिमसेल्फ, अपने पास रख लो. ब्रिटिशर्स का तो फिक्स था. ब्रिटिश चार्ज्ड फिक्स्ड रेवेन्यू, राइट, उनका फिक्स था ये. और इफ देयर इज मोर, जमींदार वुड कीप इट विद हिमसेल्फ, एंड दैट वुड डिपेंड ऑन हिज कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट द रेंट. ठीक है ना. तो ये होता था. अब वाई ब्रिटिश मेड जमींदार ओनर, आपने ऐसा सोचा कि चलो जो भी जिस किस्म की भी ओनरशिप थी क्यों दे दी. दिस कंफ्यूजन अबाउट दिस. सम से दैट ब्रिटिश कंफ्यूज द टर्म जमींदार विद द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड वाज अ टर्म दैट वाज बीइंग यूज्ड इन England, and he gave away all the ownership of the land to zamindar on that basis, but they gave ownership only to right to collection of rent. You don't have to forget this, as they themselves remained the supreme power. British खुद सुपर पावर रहे. लेकिन कुछ और हिस्टोरियन कहते हैं कि कुछ और भी कारण है ऐसा करने के कि जी ब्रिटिशर ने जमींदार को ही ओनर बना दिया उठा के. क्यों बनाएंगे उसे ओनर, खुद क्यों नहीं रखेंगे? एक तो व्यू नहीं, उन्होंने बनाया नहीं, सिर्फ रेंट लेने का राइट दिया. एक व्यू यहाँ बना दिया, लेकिन उसके कारण है क्या? पहला है स्टेट क्राफ्ट. ठीक है, आपको पॉलिटिकल लाइज बनाने हैं. यू नीड सम पीपल, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर फॉरेनर्स इन इंडिया, एंड यू नीड सम पीपल, लोकल पॉपुलेशन, हु वुड सपोर्ट यू. सो आपके कल सारे पेजेंट, इफ दे टर्न रेबेलियस अगेंस्ट यू, हाउ विल यू फाइट देम? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. नाउ बिकॉज देयर इन between peasant and British, there is a layer of zamindar who are also getting profit through the Britishers, so they would act as a buffer between two. And there were a lot of popular revolts also during the last quarter of 18th century. ये भी हमें बात पता है. No, financial security दूसरा कारण था. British needed to money. उनको पैसा चाहिए था आर्मी चलाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, सिविल एस्टैब्लिशमेंट के लिए ऑफ बंगाल, बिहार एंड मद्रास, एंड परचेजिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो ये सब करने के लिए उनको पैसा चाहिए था. तो दैट इज वाई, राइट. नाउ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नो इंक्रीज इन रेंट इवन इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड. ठीक है, कि अगर आपने, जैसे मैं जो बात आपको पहले बोल के चुका हूँ पिछली स्लाइड पे, कि अगर ज्यादा आपने प्रोड्यूस कर दिया तो प्रॉफिट आपका, लेकिन वो जमींदार खा जाता था उसके अंदर से. वो प्रॉब्लम आ रही थी. देखो बेचारे किसान के साथ क्या हो रहा है, ही इज अल्टीमेटली लूजिंग मनी, राइट. तो इसीलिए इतनी डिसकंटेंटमेंट है आज भी हमारे किसानों में. हिस्टोरिकल रीजन भी है इसके. इतनी प्रॉब्लम है जो हमारे एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है. मतलब ये कहीं ना कहीं लेगेसी आगे चलकर भी कंटिन्यू होगी. ठीक है ना. व्हेन आई टीच पॉलिटी टू यू, आई विल टॉक अबाउट दैट.
नाउ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर कुछ और टर्म्स आती हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये क्या है? इट रिजल्टेड इन नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ लैंड विद मेनी पीपल। क्या होता था, लैंडलॉर्ड क्या करता था, जो जमीन वो अपनी लैंड किसी और को दे देता है कि तू इसको संभाल, तू मुझे इतना रेंट इकट्ठा करके इसमें से देगा। सब इन्फ्यूडेशन ऑफ लैंड होती थी, आगे की आगे की आगे लैंड देते जाते थे और वो खुद ऐश करता था। ये हो रहा था। कलेक्शन से भी छुटकारा पा लिया, राइट? दे वर फ्री। Then there came sunset law. Zamindar were forced to pay annually on a particular day before sunset. Otherwise, zamindari would be auction. सूरज डूबने से पहले साल के किसी एक दिन जो चुना गया होता है पहले से ही, उस दिन तक अगर रेंट नहीं पे किया गया तो आप अपनी जमींदारी का हक खो दोगे। पट्टा सिस्टम आया। पट्टा सिस्टम, पट्टेदारी आज भी चलते हैं, पट्टेदार आज भी होता है, कई कई स्टेट्स में होता है। डॉक्यूमेंट्स वर कॉल्ड एज पट्टास। दिस वाज टू इंश्योर राइट ऑन लैंड। मतलब सी कि दिस जमींदार इज द ओनर ऑफ दिस लैंड। पट्टा लेकर है, पट्टा एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा गया। इट वाजंट गिवन टू फार्मर्स, सो देयर वाज मोर एक्सप्लॉयटेशन, राइट? पट्टा सिस्टम वाज नेवर इंप्लीमेंटेड. This is that thing about it. These were few terms. Now, why zamindari? Stable and regular income, that is better collection of rents. Loyal class of zamindars would be created. It would help English in adverse circumstances. जो बात पहले कर चुके हैं, सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं वो लोअर्स लेवल पे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी वॉर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। डिसएडवांटेज ऑफ जमींदारी की बात करें, कुछ हुआ, विलेज लाइफ खत्म हो गई। विलेज लाइफ मतलब एक होता है ना, सब आपस में जुड़कर रहते थे, अब वो उनका टूटना शुरू हो गया। जो होता था विलेजेस में पहले क्या होता था, सबको एक दूसरे की केयर करते थे। अब यहाँ सब लालची हो चुके हैं, ये हो गया यहाँ पे। एग्रेरियन सिस्टम कोलैप्स कर गया। क्यों? फोकस तो रेंट पे करने पर है। मदर इंडिया आपने देखी होगी, क्या हो गया था उसमें। कल्टीवेटर वॉज नाउ द टेनेंट ऑफ जमींदार। ठीक है जी, कल्टीवेटर जो था, किसान पेजेंट था, ही वॉज द टेनेंट, नाउ वो किराएदार बन गया। आप घर के अपने मालिक हो, आप जिस घर में रहते हो, और मैं कहूँ जी कल से आप मुझे रेंट दोगे, ये क्या हो गया? आप उस घर के मालिक नहीं रहे, आप उसके अंदर रेंट दोगे। हमारे ने कहा मुझे कल से, ये कर दिया ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम से। विशियस सर्कल बन गया। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन इन मेंस पेपर फॉर यू प्रॉब्ली। ऐसा प्रॉब्लम में तो आना मुश्किल है, बट यू नेवर नो। तो बिफोर वी रीड, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कैसे होता था। देखिए, सबसे पहले होता था अंडर रियात, ये सबसे नीचे है। अंडर रियात किसे रेंट पे करता था? ये अपनी पे करता था रियात को। रियात कौन होता है? रियात एक पेजेंट, ठीक है, किसान। फिर रियात पे करता था जमींदार को, ठीक है। ये सर्कल इनका मैं पूरा बता रहा हूँ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर। और फिर ये जमींदार पे करता था कंपनी को। नो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड, दिस अंडर रियात जो है, इसके पास पैसे नहीं होते थे, ये अपनी प्रोड्यूस ही दे देता था अगर पैसे नहीं होते थे। अब इसके पास सिर्फ 1/3 से भी कम प्रोड्यूस रह जाती थी सारे दे दे के, कई बार तो वो भी नहीं बचती थी, इतना हाई रेंट होता था। तो समटाइम्स ही विल नॉट हैव द प्रोड्यूस, तो ही विल हैव टू गिव मनी। सूखा पड़ गया, एल नीनो आ गया, बारिश ना हुई, ज़्यादा हो गई, whatever the reason be, probably there was no crop, right? Now what he would do, he would go to a person called jotedar. He would give him his whatever crop and he will promising कि चलो मैं आपको आने वाले टाइम में crop दे दूंगा, and he would give him money. This will give him crop and this will give him loan. Jotedar would give the loan to the under riyat, right? This is happening. Same thing with the Riyat. If Riyat has no money, then he will give crop to Jotedar and he will give him loan. This is what is happening. This is the role of Jotedar. Jotedar is interacting with two people. One is Riyat and other is under Riyat. And then Riyat will of course pay to Zamindar. And sometimes what will happen, they will give crop to him and Jotedar would give directly money to Zamindar. This would happen sometimes, right? So this is like first step, this is second step, this is third step and this is fourth. कंपनी का सारा पैसा ले जाती थी। अब यही इसके अंदर लिखा हुआ है, ये this is the only whole thing explained here, right? Under Riyat, ये see I have explained to you, जोतेदार would also bargain with जमींदार. This is important fact. जो जोतेदार होता था, he would bargain with जमींदार. Okay, let me give you this much rent. See, जमींदार had a fixed rent to pay to company, right? But if there were extra, जमींदार has a right to collect whatever he wants. So he would bargain. जोतेदार एंड जमींदार वुड बार्गेन। व्हाट हैपेंड, रियात यानी किसान से जोतेदार कुछ पैसे ले लेगा ज्यादा, ये कहकर कि जमींदार को ज्यादा देने हैं, और जमींदार से वो बार्गेन कर लेगा कि चल थोड़े से कम ले ले, थोड़े से मुझे दे दे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कलेक्टिवली एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट आपके लिए समझनी क्यों? क्योंकि जो लैंड था, इट वाज नॉट जस्ट फॉर प्रोड्यूस और मनी, इट वाज एन आइडेंटिटी एंड द सिस्टम ऑफ जमींदारी लेड टू पॉवर्टी एंड इंडेटेडनेस।
ठीक है, इससे इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। मदर इंडिया की स्टोरी बिल्कुल यही तो है ना। कुछ और सिस्टम भी आए अपार्ट फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जैसे कि रियातवाड़ी, महलवाड़ी। ये इस टाइम पर दिस वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इनसे इनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इनके बारे में वी विल टॉक अबाउट जब हम और चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सोशो इकोनॉमिक वो सारा फैक्टर बात कर रहे होंगे। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नर जनरल एग्जैक्टली, so that is why I'm not talking here. So we will talk about later in the complete dedicated to the structure of government in India. कॉर्नवालिस के टाइम पे फेमीन भी आया था, 2G12 फेमीन आया था। इसको जो जिसका रीजन क्या था, एल नीनियो, इसको स्कल फेमीन के नाम से भी जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका एरिया यहाँ पर कहाँ कहाँ ये आया था, ठीक है जी। बहुत सारा मराठा कॉन्फेडरेसी का एरिया में और नतन सरकार के एरिया में जो था मेनली, और निज़ाम के एरिया में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के एरिया में ये जो था फेमीन आया था। फेमीन इतना, इसको 2G12 का मतलब होता है स्कल फेमीन। और स्कल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सड़कों पे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी, सड़कें सफ़ेद हो गई थी। फेमीन दैट बोन्स ऑफ विक्टिम्स ले अनबरिड वाइटिंग द रोड्स एंड फील्ड्स, इतने बुरे हाल थे, ठीक है जी। कॉर्नवालिस क्या हुआ था, 1785 से 93 में रहता है और ये वापस चला जाता है, लेकिन इसके टाइम पे छुटपुट और दोबारा भी आएगा बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए, जुलाई में आके अक्टूबर में चला जाएगा। एक्चुअली मर जाता है सेकंड टाइम जब आता है। फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में आफ्टर कॉस्टली कैंपेन, एंड कॉर्नवालिस इज रीअपॉइंटेड टू ब्रिंग पीस बट ही डाइज इन गाजीपुर, ठीक है जी। नाउ कम जॉन शोर, आई विल क्विकली फिनिश इट। दिस इज थर्ड गवर्नर जनरल वी आर स्टडिंग 1793 to 98. He implemented the permanent settlement system, right? Actually, who introduced permanent settlement system? It was Lord Cornwallis. Who is father of civil service in India? Lord Cornwallis. Who introduced permanent settlement system? Cornwallis, right? Who brought the administrative changes in India? Big changes, called Lord Cornwallis, ठीक है। और who इससे पहले कौन आया था कॉर्नवालिस से पहले? इट वॉज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग पढ़ लिया, कॉर्नवालिस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जॉन शोर के बारे में। He implemented permanent settlement system. It was introduced by Cornwallis. He had a sound knowledge of revenue system. And sir and ma'am, let me tell you that John Shore helped Cornwallis in framing this permanent settlement system policy. He was working under him only. He followed the policy of non-intervention. दखल अंदाजी की पॉलिसी नहीं फॉलो की इसने और स्टेट्स के अंदर। Charter Act of 1793 was implemented. Why is this Charter Act comes here? We'll be discussing this in detail right now. But just after this slide, I'll tell you the introduction. 1773 Regulation Act came, and that gave company monopoly for 20 years only. And 1773 Act had come after the charter issued by the British Crown in 1600 that we have done earlier. Now this comes in 1793 because the period of 20 years gets over. Female infanticide was prohibited in 1795. This is very important fact which you should remember. Humanitarian, क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड कब खत्म हुआ? इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड और फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड में क्या फर्क होता है? इन्फेंटिसाइड होता है इन्फैंट, बच्चे को मार देना। फीटिसाइड होता है फीटस, जब बच्चा मदर की वूम में है उसको वहीं पर मार देना, दैट इज फीटिसाइड। दिस इज इन्फेंटिसाइड, बच्चे को मार देना। तो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एमर्ज इस टाइम पे थोड़ी बहुत अंग्रेजों के मन में भी आप सोच सकते हैं। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी जो थी रीऑर्गेनाइज किया गया और आर्मी का साइज छोटा किया गया। क्यों? पैसे नहीं है भाई, पैसे ही का चक्कर है। जयपुर 1794 में, त्रावणकोर 1795 में बिकेम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। अंडमान आइलैंड ऑल्सो वर ऑक्यूपाइड। उत्तरी नाउ अभी ये आगे जाके ये भी तो बनाएंगे ना वहाँ पे काले पानी की सजा, और वो जहाँ पे फिर वीर सावरकर को रखा जाएगा उस जेल के अंदर, वेरी फेमस जेल। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंट ओवर देयर टू दैट जेल। He gave a speech on that occasion, and you just Google that speech and listen to it on YouTube. It's amazing. बहुत अच्छी speech थी वो। फिर कंपनी टू कंट्रोल अ कोस्टल रीजन फ्रॉम सिलोन फ्रॉम डच, ठीक है जी। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट की, क्योंकि जॉन शोर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही आएगी। ओनली फेयरली मिनिमल चार्जेस चेंजेस टू आइदर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और ब्रिटिश ओवरसाइट ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज। बस खास नहीं कुछ किया, लेकिन जो मोटा मोटा किया वो मैंने आपके लिए यहाँ समराइज कर दिया है। आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज समरी ऑफ 2-3 जगह से लिखी है ये, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वॉज कंटिन्यूड फॉर 20 ईयर्स। पहले 20 साल के लिए मिला, अगले चलो जी 1813 तक अब चलेंगे, ऐश करेंगे। इसलिए जो अगला एक्ट आएगा वो 1813 में जाके आएगा। सैलरीज फॉर द स्टाफ एंड पेड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर नॉट चार्ज ऑन कंपनी। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कर रही थी, अब क्या हो गया, जितना स्टाफ है जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी
उन सबको कंपनी के पे करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल वॉज ग्रांट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है इसके लिए पिछला लेक्चर जाके देखो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है जो गवर्नर जनरल्स पे, यानी लेक्चर नंबर 9 है वो। द गवर्नर जनरल वॉज ग्रांटेड एक्सटेंसिव पावर्स ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, ठीक है जी, जैसे बॉम्बे, मेड्रास, ये सारी, ठीक है। गवर्नर जनरल्स पावर ऑफ ओवर रूलिंग हिज काउंसिल वाज अफर्म्ड एंड एक्सटेंडेड ओवर द गवर्नर ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी, यानी कि गवर्नर जनरल जो होता था उसकी काउंसिल होती थी, आपको याद होगा, जिसके अंदर 3 मेंबर हो गए थे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट से जो 1784 में आया था, चार्टर एक्ट से 5 मेंबर थे, जो 3 मेंबर रह जाते हैं उसके अंदर उसको कहा जाता है कि भैया अब से अगर 2 मेंबर आपके अगेंस्ट है तब भी यू कैन वीटो इट। गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई थी, जो वो वाली पावर थी, ठीक है, उस पावर को अब इसमें रीअफर्म किया गया, इतनी बात है, ठीक है। अब सीनियर ऑफिशियल्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन। अगर आप सीनियर ऑफिशियल हो ईस्ट इंडिया कंपनी का, आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे आप आईएएस ऑफिसर होते हैं, आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते बिना बताए, सेम। रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ। सर रॉयल अप्रूवल, अंग्रेजों से, वहाँ ब्रिटिश और गवर्नमेंट से वहाँ से अप्रूवल लेना जरूरी है, रॉयल किंग से। East India Company was empowered to grant licenses to both individuals and company employees to trade in India, known as the privilege or the country trade, which paved way for the shipments of opium to China. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले क्या होता था, प्राइवेट ट्रेड जो था सिर्फ इन लोकल लेवल पर अलाउड था, और उसके अंदर भी लोकल लेवल पर भी उसको मना करना शुरू कर दिया था। क्या यहाँ क्योंकि उससे वो अपना सारा फोकस कहीं और कर रहे थे, ठीक है ना। ये मैंने बात इसी लेक्चर की शुरुआत में की है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि आप इनको लाइसेंस देने लगे टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज टू ट्रेड इन इंडिया। इट इज, इस चीज को प्रिविलेज कहते थे, ठीक है। प्रिविलेज ट्रेड क्या होता है, अब आप पेपर में उलझ ना जाना किसी चीज को लेके और कि क्या होता है, या कंट्री ट्रेड क्या होता है। तो क्या हुआ, इंडिविजुअल्स और कंपनी एम्प्लॉयज हैं जो वो ट्रेड कर सकते हैं इन इंडिया, और इसी की वजह से शिपमेंट इंडिया से ओपीएम के जो है वो चाइना जाने लग जाएंगे, और ब्रिटिशर्स हमें फोर्स करेंगे ओपीएम यानी अफीम की खेती करो। कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस वर क्लियरली लेड आउट। कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन क्या होगा, दैट इज acquisition of sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of the crown and not its own right. Jab whenever company acquires any kind of sovereignty in India, it's on the behalf of crown. Company is the representative of crown now, it is not acting in its own capacity. Revenue administration were divorced from judiciary function and this led to disappearing of the माल अदालत। रेवेन्यू कोर्ट यानी कि टैक्स इकट्ठा करने की जो कोर्ट थी उसको नॉर्मल जुडिशरी अलग किया गया, जिसकी वजह से अब इनको फिर माल अदालत का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। जो कंपनी का चार्टर था, इट वुड बी नेक्स्ट रिन्यूड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पहले एक्ट को रेगुलेशन एक्ट क्यों कहते हैं, टेल मी, थिंक ओवर योरसेल्फ, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर गो बैक टू प्रीवियस लेक्चर। जो इसे लेक्चर 9 है ना, उसकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी है, आपको उसे दोबारा सुनना चाहिए, उससे क्या बैकग्राउंड बन रही है, ठीक है। मैं रटा दूंगा आपको ये सारे के जितने एक्ट्स हैं, इनकी टेंशन मत लेना, अभी जितने इसी पर पॉज कीजिए, रीड थ्रू दिस पॉइंट्स अगेन, ठीक है। मैं आई विल जस्ट हाईलाइट दिस अगेन फॉर यू। क्या है, ट्रेड मोनोपोली फॉर फर्दर 20 years, ठीक है। उसके बाद सैलरीज चार्ज टू द कंपनी। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के पास पावर थी ओवर सारी प्रेसिडेंसीज। फिर पावर ऑफ ओवर रूलिंग जो थी, पहले जो 5 मेंबर थे ये 1773 में, और फिर जो 1784 में 3 मेंबर्स रह गए थे पिट्स इंडिया एक्ट से, ये पावर को रीअफर्म किया गया। सीनियर ऑफिशियल्स कैन नॉट लीव, फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इंडिया। रॉयल अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट, बाकी पॉइंट हाईलाइटेड है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज डाइवोर्स्ड फ्रॉम जुडिशरी, और फिर माल अदालत जो थी वो गायब हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट एक्ट 1813 आएगा। अब आंसर क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इजारेदारी सिस्टम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इन योर ओपिनियन व्हाट लेड टू फॉल ऑफ दीस सिस्टम्स, ठीक है जी। आंसर्स कुछ बच्चों ने जो पहले लिख रहे थे उन्होंने कईयों ने लिखने कम कर दिए हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। अगर ठीक है, मैं समझ रहा हूँ प्रीलिम का प्रेशर है, पर पेपर उन बच्चों का क्लियर होगा जो बच्चे आंसर लिखेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, नहीं क्लियर हो सकता पेपर बिना आंसर लिखे, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। और आई ट्राई, एंड जब प्रीलिम के बाद तो आई ओपन अ टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, ठीक है, मेंस के लिए। एंड आंसर शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड द पिक्चर्स ऑफ द आंसर शुड बी क्लियर। एंड अगर मैंने अभी बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, आई रिप्लाई ऑल ऑफ यू वेरी सून, राइट। नेक्स्ट के अंदर गवर्नर जनरल विल कंटिन्यू एंड दोज विल बी लिटिल लॉन्गर लेक्चर्स बिकॉज अब टाइम कम हो रहा है, तो थोड़े लेक्चर लंबे हो जाएंगे। Thank you. Please subscribe to our channel. As always, I say this to you. And see, I'm not charging you money for modern history of India lecture series. मैं इस सीरीज के लिए modern history के लिए तो आपसे ₹1 नहीं ले रहा हूँ. Please, I have a request. Share it with other people. At least do this favor to me right now, right?
Just you, why don't you just click on the Facebook button and share it with other people, or Twitter? Just spread the word about it. And if you have any question, comments and observations or discussion you want to do, write in the comment section. I'll respond to you sooner or later, but I'll respond to all of you. That's all. Thank you for watching.